Is boys, stop talking. Topic is Pakistan after Jinnah. Pakistan after Jinnah 1948. We are doing the domestic policies. Domestic, बेटा ये चैप्टर नंबर 12 है. Chapter 12. In this chapter, in the chapter 12, in chapter 12, we have the content in the form of domestic policies. Beta, there are certain domestic policies of individuals. इसको आपने A, B और C की कैटेगरी में करना है. We will do the three individuals and the domestic policies of three individuals. Is that clear, everyone? Yes. Domestic policies of Liaquat Ali Khan slash beta domestic policies of Liaquat Ali Khan slash the other person is Khwaja Nazimuddin. Khwaja Nazimuddin. Is it clear, beta? Domestic policies of Khwaja Nazimuddin and लियाकत अली खान. बेटा ये सीट्स चेंज करें अपनी सारी. आप आगे आ जाए हुसैन. हाँ आप आगे आ जाए फ्रंट सीट पे. आप सेकंड रो में आ जाए. चलो बस यहाँ पे बैठे हो. अगले बंदों के मैं बाद में चेंज कर. जी बेटा. सो डोमेस्टिक पॉलिसीज ऑफ लियाकत अली खान और ख्वाजा नाज़मुद्दीन. बेटा domestic policies are those policies which were introduced inside the country for the betterment of the country. ऐसा ही है ना? Inside the country for the betterment of the country. Is it clear, बेटा? जी. Pakistan after Jinnah, we are studying 1948 till 1958. In that time period, we have the domestic policies between 1948 to 1958. This is the chapter. But in this domestic policies, we have 5 main headings. Under 5 main headings, we have domestic policies of Liaquat Ali Khan slash Khwaja Nazimuddin. Why I am writing these domestic policies combined? Because both these individuals, the first person was Liaquat Ali Khan was Prime Minister and Khwaja Nazimuddin was Governor General at that time. बेटा Governor General और Prime Minister दोनों जो हैं एक Head of Government होता है और दूसरा Head of State होता है. Is it clear, everyone? जी online students, is it clear, बेटा? Is it clear, everyone? Now we have 5 domestic policies. Number 1, the first policy is objective resolution. Objective resolution. Objective resolution stands for OR. Is it clear? OR is 1949. Second domestic policy of Khwaja Nazimuddin and Liaquat Ali Khan was BPC, first BPC report. First BPC report. This is the second domestic policy. It was in 1950. Is it clear? जी online students, is it clear, बेटा? Basic Principles Committee. The third domestic policy related to Liaquat Ali Khan and Khwaja Nazimuddin was PRODA.
Public Representative Officers Disqualification Act 1949. Number 4, reforms in military. Reforms in military. And the last important domestic policy is financial policies. Financial policies. So, how many domestic policies were introduced by either Khwaja Nazimuddin or Liaquat Ali Khan? These were 5 in total. इससे ज्यादा थी, लेकिन आपको 5 करने की जरूरत है. Sometimes examiner can ask you to write the success and failures, or examiner can give you the question related to the overall policies. Like examiner can ask you to describe objective resolution was the most important domestic policies or other. So you have to write these. Is it clear, everyone? Is it clear, everyone? Now we have objective resolution first. Objective resolution. Beta, that was, I'm just writing the word success or failures. This was the success. ये क्या थी? S. S means success. जी बेटा, ये क्या थी? S का मतलब क्या है? Success. BPC report, failure. Third, PRODA, failure. Reform in military, success. Financial policies, success. Now, how many successes are there? So, Liaquat Ali Khan or Khwaja Nazimuddin were mostly successful in introducing the domestic policy. Is it clear, everyone? The online students, beta? Is it clear, everyone? Is it clear to Yes, you people? The online students, is there any question? Okay. Now we have, what is objective country? बेटा जो सेट ऑफ लॉज इन द फॉर्म ऑफ बुक जब होता है तो उससे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन. तो सबसे पहली चीज क्या थी कि वी वर सपोज टू या वी वर इन द मेकिंग ऑफ थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं. न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री. वी वर सपोज टू मेक न्यू लॉज फॉर द कंट्री. हमें नए लॉ बनाने थे पाकिस्तान के लिए. तो पहला स्टेप क्या था? सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था क्या? इसकी ओरिजिनल कॉपी में आपको दिखाता हूं. लेट मी जस्ट शो यू द ओरिजिनल कॉपी ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ये अगर मैं इसकी कॉपी आपको ओरिजिनल दिखा दूं तो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के पेजेस के ऊपर है. दैट वाज 38 पेजेस डॉक्यूमेंट. दैट वाज 38 पेजेस डॉक्यूमेंट. इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स टू मेक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान थे. अब आपको ये 38 पेजेस नहीं पढ़ने और ना ही याद करने हैं. यू जस्ट need to know what was the actual theme of these 38 pages. In 38 pages का मेन थीम क्या था? मेन थीम तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपने याद रखना है कि ये पास किसने किया था? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, मीन पाकिस्तान की वो असेंबली जो लॉ मेकिंग बॉडी थी. इज इट क्लियर? और लॉ मेकिंग बॉडी का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है और ओवरऑल पूरे कंट्री का हेड कौन होता है? गवर्नर जनरल. तो इसलिए हम दोनों को क्रेडिट देंगे. ख्वाजा नाज़मुद्दीन को भी हम क्रेडिट दे सकते हैं इस चीज का, एंड वी कैन गिव क्रेडिट टू लियाकत अली खान टू. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? इट वाज सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टू मेक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, to make new constitution in Pakistan. जी बेटा, आज मैंने क्लास स्टार्ट की तो मैंने सबसे पहले क्लास में आते ही जो मैंने काम किया, सबसे पहले मैंने क्या लिखा ऊपर? ये क्या लिखा है मैंने इसके ऊपर? तो इसका मतलब है मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था आज की क्लास का? कि मुझे ये टॉपिक आपको पढ़ाना है. दैट वाज माय ऑब्जेक्टिव. तो व्हेन गवर्नमेंट वाज अबाउट टू मेक न्यू लॉज, तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या डिसाइड किए कि उन लॉज का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्या पर्पस होगा. तो फर्स्ट थिंग इज टू मेक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द थिंग.
आप लोग अगर एकेडमी आए हैं या क्लास ले रहे हैं मेरी, तो आप लोगों का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू गेट नॉलेज और टू गेट ए और ए स्टार, अगर नॉलेज नहीं लेना तो ऐसा ही है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आते हैं, ऑब्जेक्टिव आर द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट स्टेज जो सबसे पहले हमें होने चाहिए क्लियर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? यस बेटा। Okay, set of objectives to make new constitution in Pakistan. That is the first thing. So main points were what were the main points or the features? Main points or features of this objective resolution. हमने resolution लिया कि हमारा constitution future में कैसा होगा. That was a commitment of the government. Yes. Number one, all laws in accordance to Islam, all laws, जी online students, all laws in accordance to Islam, Islamic system of social justice, Islamic system of social justice, then Islamic economic system, फिर उसके बाद sovereignty belongs to Allah. Sovereignty means the actual power belongs to Allah. तो पाकिस्तान में जितने भी लॉस बनेंगे वो अल्लाह के लॉ के अकॉर्डिंग, मींस whatever Allah is saying in Quran and Sunnah, that would be applicable in Pakistan. Is it clear? And last, protection of minorities. नहीं, इसमें नहीं था वो, protection of minorities. These were the few major points. अगर ये 5 पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं तो इन पे कितने मार्क्स का क्वेश्चन सेपरेटली बन सकता है? 4 separate point, 4 marks. What were the main features of objective resolution? Just on these 4 points, I'm just asking you to write. For example, examiner can ask you describe the main features of objective resolution. These 5 features are there in the objective resolution. अब on the basis of these features, ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? आज भी बैठे हुए हम पढ़ रहे हैं इसको। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। चलें, आई एम जस्ट शोइंग यू दैट थिंग। ये नेशनल असेंबली के प्लेटफॉर्म से मैं कोई और चीज नहीं दिखा रहा। सबसे पहले देखें कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के ये पहला वर्ड क्या नजर आ रहा है? व्हाट इज दैट थिंग? ये जो मिडल में लिखा हुआ है, प्रीएम्बल किसको कहते हैं बेटा? लुक एट दिस वर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीएम्बल ऑनलाइन स्टूडेंट्स? प्रीएम्बल सर मतलब जिसके मुताबिक बनाओ, एक चीज मतलब उस चीज के मुताबिक। प्रीएम्बल मींस इंट्रोडक्शन भी आप बोल सकते हैं, प्रीफेस भी बोल सकते हैं। इंट्रोडक्शन आप कह लें तो इट इज मोर सूटेबल। सर फॉरेनर भी कह सकते हैं। जी, फॉरेनर भी कह सकते हैं। प्रीएम्बल इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन और एन इंट्रोडक्शन। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? प्रीएम्बल इज इंट्रोडक्शन। अब प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो सबसे पहली चीज हमारा ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में दिखा रहा हूं आपको। आई एम नॉट शोइंग यू एनी अदर थिंग, आई एम शोइंग यू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। प्रीएम्बल, प्रीएम्बल मींस पाकिस्तान के अंदर जो भी सिस्टम होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन। इंट्रोडक्शन किस चीज के बारे में है? प्रीएम्बल, जिसके अंदर लिखा हुआ है प्रीएम्बल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसमें क्या है? प्रीएम्बल किसके बारे में? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इज इट क्लियर एवरीवन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये देखें प्रीएम्बल के अंदर पूरी जो बातें लिखी हैं वही जो 38 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट दिखाया है, इसको समराइज करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले 2 पेजेस पे क्या लिखा हुआ है? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में क्या है? तो दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आज भी लियाकत अली खान का क्रेडिट हम क्यों देते हैं? व्हाई वी कॉल इट द बेस्ट पॉलिसी ऑफ लियाकत अली खान? बिकॉज दिस
continued, and this became the preamble of every constitution of Pakistan. Clear? This constitution became the preamble. So objective resolution, it is important. It was important because it used in preamble of all future constitutions of Pakistan, and it was first attempt to make constitution. It was first attempt to make new constitution. आपने quotation सुना होगा, first step is the hardest. First step is the hardest one. तो जब constitution बनाने में we took the first step, it means के we resolved our issue of constitution making. We resolved and we successfully passed the first stage. हम पहला स्टेप पार कर गए. हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाना था उसका जो सबसे पहली चीज यही होती है ना कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो विच टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव्स इट वुड डील. ऐसा ही है ना. तो इसके सेंटेंसेस में आपने याद रखना है कि दैट वाज जस्ट ए प्रपोजल. इट मींस यू विल ऑलवेज यूज दैट फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें ऑब्जेक्टिव्स होंगे दैट वाज रिटन इन दैट. इज इट क्लियर? ऑब्जेक्टिव resolution. So that was for the future constitution. It was not a law. It was just a proposal on which government made laws in future. Is it clear, everyone? Mustafa? It was just a proposal on which government made laws in future. Is it clear, everyone? Ji online students, is it clear, beta? Any Yes, question? sir. Any question? इतने लाइक हो गए सारे माशाल्लाह, सबको आना शुरू हो गया. गुड. नेक्स्ट, फर्स्ट बीपीसी रिपोर्ट. फर्स्ट बीपीसी रिपोर्ट, व्हाट वाज दैट? फर्स्ट किस पे? नहीं, ये कंबाइंड 14 का भी बन सकता है ना, 7 का भी बन सकता है, 7 का बन सकता है. व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट? तो इंपॉर्टेंस में वही पॉइंट्स आएंगे ना, यही पॉइंट्स एक्सपेंड हो जाएंगे कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रीएम्बल और ऑब्जेक्टिव्स थे, फिर इसके अलावा प्रीएम्बल था, फिर इसके अलावा फर्स्ट अटेम्प्ट थी, इसके अलावा ऑल द रिलीजियस सेगमेंट्स एक्सेप्टेड इट विलिंगली. यही सारे पॉइंट्स. क्लियर? नेक्स्ट इज सेकंड इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक पॉलिसी ऑफ लियाकत अली खान और ख्वाजा नाज़मुद्दीन. First Basic Principles Committee report. First Basic Principles Committee report. First Basic Principles Committee report was prepared, in which basic outline of future constitution was written. क्या था? बेसिक आउटलाइन. आउटलाइन क्या होता है? जिस तरह ये मैं आपको लिखवा रहा हूं, तो क्या मैं आपको पूरा 14 मार्क्स का आंसर लिखवा रहा हूं, और इट इज जस्ट एन आउटलाइन? मैं हमेशा सैंपल क्वेश्चंस आपको लिखवाता हूं. सैंपल क्वेश्चंस में मैं हमेशा क्या लिखवाता हूं? आउटलाइन ऑफ द क्वेश्चन. ऐसा ही होता है. आउटलाइन क्या फुल डिटेल हो सकती है? कभी भी नहीं. आउटलाइन को फुल करने के लिए उस पर फर्दर वर्किंग की जाती है. तो ये दैट वाज जस्ट एन आउटलाइन. ऑब्जेक्टिव बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी रिपोर्ट वाज जस्ट एन आउटलाइन. अब ये कैसे डिसाइड हुआ
कि इसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा. लेट मी जस्ट शो यू वन मोर थिंग. बेटा, in the objective resolution, the last pages of objective resolution deals with the basic principles committee report. Let me just show you. अगर आपको ये आखिरी रिपोर्ट के कुछ वर्ड्स यहां पे नजर आ जाएं, आपको ये देखें, अपॉइंटमेंट ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, मोशन री के आगे क्या लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑफ बेसिक, यस, अपॉइंटमेंट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी. इसके हेड कौन थे? लियाकत अली खान. और इसके अलावा इसके अंदर अराउंड 23-24 मेंबर्स वर देयर. जैसे आप सब लोगों की मैं एक कमेटी बना दूं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स या इनकी मैं फेस टू फेस सबकी एक कमेटी बना दूं, ऑर्गेनाइज कर दूं. मैं कहूं कि कल आप ये काम करके लेके आएंगे, आप आपस में डिबेट करेंगे, यू विल मेक द आउटलाइन, यू विल कम अप विद द पॉइंट्स. दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव. ये आपकी बेसिक प्रिंसिपल्स डिसाइड करने. तो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के क्या डिसाइड किए गए? बेसिक प्रिंसिपल्स. व्हाट वर दोस प्रिंसिपल्स व्हिच वर एग्रीड अपॉन, जिनके ऊपर सारों ने एग्री किया, और दीज वर द फीचर्स. व्हाट वुड बी इन द कॉन्स्टिट्यूशन? नंबर 1, Urdu would be national language. Urdu would be national language. जी बेटा, Urdu would be national language. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Urdu would be national language. लेकिन आपको पता है इस पॉइंट पे बंगालीज ने इतराज किया. उन्होंने कहा कि we can't speak Urdu language, we need Bengali as the national language along with Urdu. Along with Urdu, Bengalis ने क्या कहा? We need, what do we need? Bengali language. Is it clear, बेटा? Next is second point. There would be, क्या हो गया यार? अच्छा, there is another important thing. Bengali would be the national language. Second, Urdu would be the national language. Second point, representation in assembly on population basis, on population कह रहा हूं, on equality basis, on equality basis in East Pakistan and West Pakistan. कि मतलब half seats in the National Assembly would be from East Pakistan and half seats would be from West Pakistan. जी अब्दुल हादी, आप 2 काउंट से आए हैं बेटा? हादी, तो सर वो दूसरा अभी हटा रहा हूँ. अच्छा, you are the new one from Karachi, I guess. Yes, okay, fine. चले, so अभी लिखना है आपने, ठीक है? तो इसके बाद नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन इन असेंबली ऑन इक्वालिटी बेसिस इन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान. पाकिस्तान वाज डिवाइडेड इनटू 2 प्रोविंसेस, 2 पोर्शंस, ईस्ट एंड वेस्ट, तो उनके दरमियान ये सीट्स होगी. देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी कैसी होगी? व्हाट टाइप ऑफ लॉ मेकिंग बॉडी वुड बी देयर इन पाकिस्तान? देयर वुड बी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर. यूनिकैमरल legislature. Law making body would be unicameral. What does it mean? It means there would be just one house of the parliament. National Assembly would be the just one house. पाकिस्तान में अभी करंटली बाइकैमरल लेजिस्लेचर है. लॉ मेकिंग बॉडी लोअर हाउस भी होता है, अपर हाउस भी होता है. इसके मुताबिक खाली जब असेंबली के अंदर लोअर हाउस और अपर हाउस होता है, वी कॉल इट बाइकैमरल. जब नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की पार्लियामेंट हैज जस्ट वन हाउस, इट इज कॉल्ड यूनिकैमरल लेजिस्लेचर. तो इसमें प्रपोज किया गया देयर वुड बी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर. इज इट क्लियर? दीज आर द फ्यू पॉइंट्स, बट दिस रिपोर्ट वाज थॉरोली रिजेक्टेड. ये रिपोर्ट अल्टीमेट फेलियर है, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया दिस वाज अ फेलियर. हाउएवर
However, this report failed because East Pakistan wanted seats on their population basis. They wanted seats on their population basis, number one. और क्या कर सकते हैं? They wanted seats on their population basis. Secondly, They wanted Bengali and Urdu to be the Yes. national language. very good, Bengali as national language. सर और उलेमास ने भी क्रिटिसाइज किया था ना. Yes, beta. And ulamas criticized, and ulamas opposed being un-Islamic. मतलब this report was actually un-Islamic according to them. Beta, now just look at the 3 points. जब ये report fail हुई, तो was the constitution making successful in the time period of Liaquat Ali Khan? Was the constitution established or made in the time period of Liaquat Ali Khan or Khwaja Nazmuddin? Yes or no? No. नो सर. इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा स्टेप था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का वो फेल हो गया. तो इसका मतलब है थर्ड स्टेप अभी हम नहीं ले सकते. वी कांट टेक द थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप इज टू मेक लॉ, लेकिन वो नहीं बन सका क्योंकि सेकंड पॉइंट पे देयर वाज ए ह्यूज डिसएग्रीमेंट. जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पे एग्रीमेंट ना हो सके, आप देखें, इफ वी हैव डिसएग्रीमेंट्स, तो क्या हमारी क्लास का लेक्चर आगे मूव कर सकता है? मैं आपसे पूछता हूं बेटा कि सवाल है, आप कहते हैं नहीं है, मैं तब आगे मूव करता हूं. अगर किसी का डिसएग्रीमेंट होता है, वो सवाल पूछता है वो, तो उसके बाद जब सवाल एड्रेस करता हूं, देन आई कैन प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेज. इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में द सेकंड स्टेप फेल्ड. इट मींस देयर वाज डिले इन कॉन्स्टिट्यूशन. अब क्या होगा? दोबारा सेकंड स्टेप किया जाएगा. द रिपोर्ट वुड बी न्यू वन. ये पहली रिपोर्ट थी, ये पहली रिपोर्ट फेल होगी तो दोबारा एक और रिपोर्ट बनेगी. तो जब नई रिपोर्ट बनेगी, क्या वो एक दिन में बन जाएगी रिपोर्ट? कितना एक अरसा लगता है एक रिपोर्ट बनाने में? मिनिमम 4 to 5 months are required. लेकिन पाकिस्तान असेंबली टुक ऑलमोस्ट 1.5 year. 1.5 साल लगा हमें नई रिपोर्ट बनाने में. तो इसका मतलब है 1.5 साल तक हमारा फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री में नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस. मुल्क के अंदर क्या है? इन द कंट्री देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस. राफी, क्या होता है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस. इज इट क्लियर? डन एवरीवन? डन बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का क्या होता है? अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, व्हाई वर देयर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन 1950? व्हाई वर देयर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दिस इज ए क्वेश्चन बेटा, आप लोगों से सबसे क्वेश्चन है. Why सर were इसमें there ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं. 1953 points? सर एक बंगाली इसका नेशनल लैंग्वेज, बंगाली एज अ नेशनल लैंग्वेज, दूसरा पॉपुलेशन जो पैरिटी फार्मूला था, और तीसरा उलेमास. Yes, very good. पहला पॉइंट है इशू ओवर रिप्रेजेंटेशन. नंबर 2 लैंग्वेज इशू. नंबर 3 उलेमास इशू की वजह से. जब ये तीनों पॉइंट्स पे एग्रीमेंट नहीं हुआ, when there was delay in constitution making, Basil, when there was delay in constitution making, तो हम उसको क्या बोलते हैं? constitutional crisis. constitutional crisis नहीं, वो mental disorder होता है. constitutional crisis. Is it clear, online students? Should we move to the third point? Proda. I'm moving towards the third point. G online students, I'm moving towards the third point. Third point is प्रोडा. प्रोडा क्या चीज है? नाम से पता लग रहा है कोई ये ब्रांड का नाम है, लेकिन ये ब्रांड नहीं था. दैट वाज, वो प्राडा है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं बेटा, मुझे क्या पता ब्रांड का. ये तो आप लोगों को ही पता है, ब्रांड कॉन्शियस कौम को. मैं खुद ब्रांड हूं. अच्छा चलें जी. प्रोडा क्या है? पब्लिक, ये लिखो बेटा, पब्लिक जी, इसका पूरा नाम लिखिएगा, पब्लिक
रिप्रेजेंटेटिव, बेटा रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में कौन होता है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव? मींस पॉलिटिशियंस. ऑल द पॉलिटिशियंस आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स. पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स. बेटा जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं, वी कॉल देम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स. अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डिनेंस, डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, सॉरी ऑर्डिनेंस कह रहा हूं, एक्ट. ओके जी, 1949. नाम से आपको पता चल रहा है किसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? ऑल दोज इफ समवन इज इन्वॉल्व्ड इन करप्शन, मैल प्रैक्टिसेस, सच इंडिविजुअल्स वुड बी disqualified. So this law was made to disqualify those who were involved in corruption, those who were involved in corruption. किनको? those who were involved, public officers और politicians, those who were involved in corruption. ये नेगेटिव क्या है? ये भी मैंने बताया था, ये फेलियर था. however it was very good, it was misused as politicians used it to remove their political opponents. मतलब मैं no high ranked officer like governor general and prime ministers. For example, if there was, for example मैं prime minister हूं और मुझे लगता है कि मेरा opponent जो है इस टाइम पे मेरा ओपोनेंट वो है जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं. अच्छा, तो उन ओपोनेंट्स को डिस्क्वालीफाई करने के लिए मैं इस लॉ को यूज करूं, और मैं जब इस लॉ को यूज करूंगा, अब मैंने तो मोबाइल यूजर्स के ऊपर क्रैकडाउन किया ना, ये तो लॉफुल एक्ट है. अगर मैं बेचारा कोई मोबाइल नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैं फिर भी उसे रिमूव कर दूं या डिसमिस कर दूं, दैट इज मिसयूज ऑफ दैट लॉ. तो पॉलिटिशियंस क्या करते थे कि करप्ट लोगों के अलावा कोई उनका एनिमी होता था, पॉलिटिकल ओपोनेंट होता था, उस पर करप्शन का केस डालते थे, उसके ऊपर ये प्रोडा एक्ट लगाते थे, उसको डिसमिस एंड डिस्क्वालीफाई करते थे. नो, दे जस्ट नीड एन आर्ग्यूमेंट बस. लाइक आजकल भी पाकिस्तान के अंदर किसी को डिस्क्वालीफाई किया एक केस के ऊपर, तो वो ओरिजिनल केस है, लेकिन पॉलिटिकल ओपोनेंट्स मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है, ओपोनेंट्स है, ठीक है, ओपोनेंट्स है. इज इट क्लियर? देन वी हैव रिफॉर्म्स इन मिलिट्री. बेटा व्हाट वर द रिफॉर्म्स इन मिलिट्री डन बाय लियाकत अली खान एंड ख्वाजा नाज़मुद्दीन दैट वाज सक्सेस? नंबर 1, new ordinance factory at Wah. Beta, what is the purpose of ordinance factory? Sir, weapons banana. To make weapons for the country. Number 2, new commander in chief Sir, General Ayub Khan. Yes, Ayub Khan, by replacing Gracie, पहले पता है ना, याद है मोहम्मद अली जिन्ना ने किसको बनाया था पाकिस्तान का पहला कमांडर इन चीफ? ब्रिटिश था, कोई ब्रिटिश कोई था. यस बेटा, कमांडर इन चीफ 1949. ओके बेटा, व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ इट? आई हैव रिटन दैट इन सक्सेस पार्ट. इसकी सक्सेस क्या है? हेंस these steps improved
security and defense mechanism in Pakistan. Is it clear, beta? Ji online students, is it clear? Yes. Last important step of Liaquat Ali Khan was financial policies. What was the last step? Financial policies. So government made Wakent के अंदर है ना बेटा, Wakent is a location near Islamabad. Wakent आपने सुना होगा. तो वहां में जो Yes. ordnance factory, that ordnance factory is still present in Wah. वहां पे आज भी armaments बनते हैं, ammunition आपकी बनती है. These steps improve security and defense mechanism in Pakistan. Is it clear? Further, beta, we have last point. Government under Liaquat Ali Khan / Khwaja Nazimuddin. Liaquat Ali Khan और Khwaja Nazimuddin की short form में लिख रहा हूं. Liaquat Ali Khan and Khwaja Nazimuddin made surplus budgets. What is the meaning of surplus budgets? Surplus budgets mean budgets with lot of profit wale budget. Yes. So government under Liaquat Ali Khan and Khwaja Nazimuddin made surplus budgets which brought economic changes. Plus, beta, government also focused on industrial development. Government also focused on improving the business administration in Pakistan. Overall, Liaquat Ali Khan made the financial affairs of Pakistan successful. Ji beta, is it clear, everyone? Ji online students, is it clear? These were the domestic policies of which person? ख्वाजा नाज़मुद्दीन. ज्यादा ये आपने लिखना है ख्वाजा नाज़मुद्दीन के लिए, ज्यादा चांसेस ख्वाजा नाज़मुद्दीन के आने के होते हैं. ख्वाजा नाज़मुद्दीन, गुलाम मोहम्मद एंड लियाकत अली खान एंड सिकंदर मिर्जा. तो आपने याद रखना है कि ये ख्वाजा नाज़मुद्दीन या लियाकत अली खान दोनों के बारे में आ सकती हैं. These policies were important for both people because both have similar policies. Is it clear? Study military reforms किस साल में इंट्रोड्यूस हुई थी? जी बेटा, मिलिट्री रिफॉर्म्स. बेटा मिलिट्री रिफॉर्म्स विद द पैसेज ऑफ टाइम होती रही ना. 1950 में, 1949 में these reforms were introduced. Clear everyone? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर बेटा? Any